بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار مدینہ، تاجدار انبیاء، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں عقیدتوں، ارادتوں اور نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما مقتدر علماء، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بنی اسرائیل سے ایک آیہ نور تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رجب المرجب کا یہ بابرکت مہینہ ہے اور اس ماہ کی 27 تاریخ کو میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے ہیں جہاں کسی کا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی فلک تیرا یار گیا، کوئی جا سدرات ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ۔ یہ اعزاز میرے نبی کا ہے کہ حضور نے سر کی آنکھوں سے رب کا جمال دیکھا ہے۔ حضور کے علاوہ کسی اور نبی کو یہ اعزاز نہیں ملا۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن عرض کیا، ربی ارنی، مالک تجھے بے نقاب دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جواب ملا تھا لن ترانی، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے زن وکئی حروف ناصبہ ہے اور حروف ناصبہ میں سے جب کوئی حرف مضارع پر داخل ہوتا ہے تو وہ فعل مستقبل کی ابدی نفی کرتا ہے۔ یہاں فرمایا آپ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ طبیعت میں الجھاؤ پیدا ہوا۔ امتی اچھا عمل کرے اس کے لیے وعدہ جنت ہے، صرف وعدہ جنت نہیں، جنت میں رب کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ نبی بدرجہ اوتم اس کا حقدار ہوتا ہے، لیکن یہاں موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ علماء کہتے ہیں یہاں کچھ مقدر ماننا پڑے گا۔ جس نام پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع۔ علماء کہتے ہیں یہ شروع کس کا ترجمہ ہے؟ فرمایا اس میں اشرو مقدر ہے۔ اشرو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ فرمایا یہاں بھی کچھ مقدر ماننا پڑے گا۔ جہاں موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے، تو فرمایا یہاں مقدر یہ ہے حتی یرانی محمد۔ فرمایا موسیٰ اتنی دیر تک نہیں دیکھ سکتے جتنی دیر تک مجھے محمد عربی نہیں دیکھ لیتے۔ اس کو سادہ کری کو ڈلے بیسمنٹ کر۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی کہ میں نے دیکھنا ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ نہیں دیکھ سکتے تو ضد کیوں کی؟ علماء کہتے ہیں یہ ضد اس لیے تھی کلام سن چکے تھے۔ مالک تیرے کلام میں اتنا مزہ ہے تو تیرے دیدار میں کتنا مزہ ہے۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی تو میں نے دیکھنا ہے، تو اللہ نے فرمایا پہاڑ کی طرف دیکھو۔ تو اللہ نے پھر پہاڑ پہ اپنی ذاتی نہیں صفاتی تجلی کا پرتو ڈالا۔ قرآن کہتا ہے خر موسیٰ صاعقہ، تاب نہیں لا سکے، بے ہوش ہو گئے۔ اچھا جب ہوش آیا نا، آنکھوں میں دیدار الہی کا سرما بڑا تھا، کانوں میں سماعت کا شور بڑا۔ 27 میل دور غار ہے، غار میں کالے رنگ کا پتھر ہے، پتھر پہ کالے رنگ کی چیونٹی ہے، چیونٹی چلتی ہے، اللہ کا نبی چلتے دیکھتا بھی ہے، چلنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس آواز کو بھی سنتے ہیں۔ دیوار پہ چیونٹی چلے دکھائی نہ دے، کان کے پردے پہ پھینک دو تو شور سنائی نہ دے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بھی سنا بھی۔ یہ کلیم ہے، میرے نبی حبیب ہیں، انہوں نے ذاتی نہیں صفاتی تجلی کا پرتو پڑھتے دیکھا، اور میرے نبی معراج کی شب صفاتی نہیں ذاتی تجلیات میں گم رہے تھے۔
बताओ निगाह मोहम्मद का क्या आलम होगा, हुजूर की सवातों का आलम क्या होगा। दीवाने इसीलिए कहते हैं मदीना तो दूर ही कोई नहीं, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। और हम क्या कहते हैं, हम यहाँ से पढ़े वो मदीने सुने, मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम। ये हुजूर का एजाज है दोस्त, हुजूर ने रब का जमाल देखा, हुजूर के अलावा किसी और नबी को ये एजाज नहीं मिला। यहाँ मैं आपके सामने आज मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पस मंजर बयान करूंगा। अल्लाह की आदत है दोस्त, अल्लाह जिसको जितना बड़ा मुकाम देता है ना, उसको फिर आजमाइश की उतनी बड़ी राह से भी गुजारता है। यारी तेरी सोना पर अजमैशा तेरियां अग, सोना परखिया जामदा ए नाल अगां दे लग। जिसको अल्लाह जितना बड़ा मुकाम देता है ना, उसको फिर आजमाइश की उतनी बड़ी राह से गुजरना पड़ता है। आप नबियों की जिंदगियों का मुताला करके देख लो, अगर उनके सरों पर नबूवत के ताज हैं तो मेरे मालिक ने उन्हें आजमाया किस कदर। अल्लाह के नबी हैं हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, आपकी माइशत बड़ी मजबूत थी, 40,000 बकरियों का रेवड़ था, 40 बाग थे, 400 गुलाम था। अल्लाह ने चांद जैसे 12 बेटे भी अता फरमाए थे। अल्लाह ने फरिश्ते को भेज दिया कि जाओ मेरे नबी से कहो कि आजमाइश के लिए तैयार हो जाओ। तो आप फरमाते जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नु चुले डालूं। कहा मैं आने वाली हर आजमाइश पे सब्र करूंगा। सुनिएगा दोस्त, आप मिंबर पे जलवा फिराज है, ताहद्दे नजर हवारी है, महवे कलाम है। एक गुलाम दौड़ा दौड़ा आया, उसने कहा हजरत गजब हो गया, 40,000 बकरियों का रेवड़ पानी की बेरहम मौजे बहा के ले गई, आपने सब्र किया। अच्छा अभी उसकी बात खत्म नहीं हुई कि एक और आया, कहा हजरत गजब हो गया, 40 बाग हवा का तेज झोंका उड़ा के ले गया, आपने उस पर भी सब्र किया। भाईजान ऐसा नहीं हुआ कि दरमियान में 6 माह का वक्फा डाल लिया गया हो कि अगला इम्तिहान 6 माह बाद लिया जाएगा। एक वक्त में सारे इम्तिहान है। एक और आया और उसने जो आके खबर दी ना, वो खबर सुन के कलेजा मुंह को आता है। उसने कहा हजरत गजब हो गया, आपके 12 बेटे किसी के यहाँ मेहमान बने, मकान की छत गिरी और आपके 12 के 12 बेटे शहीद हो गए। औलाद आंखों की ठंडक मन का करार होती है दोस्त, औलाद असाए पीरी होती है, बुढ़ापे का सहारा होता है। एक झटके में 12 बेटे चले गए, आपने उस पर भी सब्र किया। फिर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म में जख्म आए, आजमाइश थी। शहर वालों ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को शहर से निकाल दिया, आजमाइश थी। जख्म जुबान तक आए, जुबान चाटने लगे। तो फिर अल्लाह के नबी गोया हुए, मोहब्बत की जुबान बोली। भाई शिकवा तो हम लोग करते हैं, जिंदगी में कोई इम्तिहान आ जाए तो हम कहते हैं या अल्लाह सारे दुख साढ़े गरीबा वास्ते ने, ये आजमाइशा साढ़े वास्ते ही नहीं। लेकिन दोस्त जो अहलुल्लाह होते हैं वो राजी पर रेजा रहते हैं। मोहब्बत का नगमा था मालिक, 40,000 बकरियों का रेवड़ पानी की बेरहम मौजे बहा के ले गई, मैं ना बोला। 40 बाग हवा का तेज झोंका उड़ा के ले गया, मैं ना बोला। मेरे चांद जैसे 12 बेटे चले गए, ऐला मैं ना बोला। शहर वालों की बेवफाई का तस्करा किया, मुझे शहर से निकाल दिया गया, ऐला मैं ना बोला। अर्ज करते मालिक देख तेरे बंदा अय्यूब के बदन में जख्म आए, मेरे जिस्म से पोटियां टूट के जमीन पे गिरी, ऐला मैं फिर भी नहीं बोला। लेकिन मालिक एक दरखास्त है, मेरी जुबान महफूज रखना। वो इसलिए कि ये जुबान तेरा नाम लेती है, उठदी बहदी टुरदी फिरदी सुते आते जागदी, नाम जपदी रोते खपदी बेहसुर इस राग दी। नाम जपिया कुर्ब मिलदा नाम दी कर पूरी साम, शीशी विच कस्तूरी जेकर फिर जरूरत कागदी। जिन्हें इज्जतें मिलती हैं दोस्त उन्हें आजमाया जाता है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हजरत याह्या अलैहिस्सलाम ये दोनों बाप बेटे हैं, दोनों अल्लाह के नबी हैं। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के जमाने में जो है वो बादशाह की बीवी ने अपने शोहर को पेशकश की कि मेरी बेटी से निकाह कर लो। उसने पहले भी किसी से निकाह किया हुआ था, उससे वो बेटी थी उसकी। ये बूढ़ी होगी, इसको खतरा लाहिक हुआ कि कहीं बादशाह मुझे अपने दरबार से निकाल ना दे। तो उसने कहा तुम इससे निकाह कर लो। बादशाह ने कहा मैं वक्त के नबी हजरत याह्या अलैहिस्सलाम से इसका फतवा लूंगा, जो वो हुक्म करेंगे मैं उसका पाबंद हूँ। याह्या अलैहिस्सलाम के पास आया तो आपने फरमाया कि मेरी शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। उसने आकर के अपनी घरवाली को बता दिया कि इससे निकाह नहीं हो सकता। वो आग बगोला हुई, इंतकाम की आग सीने में भड़कने लगी।
उसने कसम खाई, इरादा किया कि मैं इस बात का अल्लाह के नबी हजरत याह्या अलैहिस्सलाम से बदला लूंगी। उसने क्या किया, एक दफा बादशाह को शराब पिलाई और अपनी बेटी को सजा सवार के उसके सामने किया। बादशाह नशे में धुत था, वो कल तक जो बेटी जानता था आज शराब पीने के बाद रिश्तों की कदरें भूल गया। नफ्स की आग बुझाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता उसने खींच लिया, कहा उतनी देर तक ये तेरे करीब नहीं आएगी जितनी देर तक अल्लाह के नबी याह्या अलैहिस्सलाम का सर काट के मेरे सामने नहीं लाते। उसने फौज को हुक्म दिया, जहां मिलते उन्हें कत्ल कर दो। फौज दौड़ने लगी। कौम के बूढ़े बोले, बादशाह इतना मुतकब्बर ना बन, तू जानता नहीं उसका बूढ़ा बाप जिंदा है, वो मुस्तजाबुद दावत है, अगर उसके बूढ़े हाथ उठ के तो तेरे पल्ले कुछ नहीं बचेगा। उसने कहा ज़करिया अलैहिस्सलाम भी जहां मिलते हैं उन्हें भी शहीद कर दो। फौज दौड़ रही है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने एक दरख्त में पनाह ले ली, पल्लू बाहर रह गया। शैतान इंसानी रूप में वहां बैठा। उसने कहा इसमें घुस गए हैं। वो परेशान हुए कि यहां से निकाले कैसे। उसने कहा तुम्हें कत्ल का हुक्म है, मैं मशवरा देता हूं कि तुम आरा लाओ और आरा ला करके इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दो। भाईजान आरा लाया गया, फिर आरा चलाया गया। जब आरा सर की चोटी पे आया तो अल्लाह ने फरिश्ते को भेज दिया, जाओ मेरे नबी से कहो अगर सी भी की तो साबरों की फरिश्त से नाम खारिज कर दिया जाएगा। जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है दिल लगी नहीं, जो सीस तली पे धर न सके वो प्रेम नगर में आए। क्यों इन राहों पे चलने वालों को आजमाया जाता है। याह्या अलैहिस्सलाम का सर काट दिया गया, खून कुएं में बहा दिया गया, तशरी में पेश किया गया। और भाई जिन्हें इज्जतें मिलती हैं उन्हें आजमाया जाता है। मेरे और आपके आका और मौला नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इमामुल अंबिया हैं। आपका फख्र कि आपने सर की आंखों से रब का जमाल देखा है। एजाज कितना बड़ा है और आजमाइशी इम्तिहान कितने आए, सुनिएगा। हुजूर अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, शिक में मादर में है कि आपके सर से आपके वालिद का साया उठा लिया गया। ये उस वक्त हुआ जब हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु शादी के कुछ अरसा बाद तजारत के लिए मुल्क शाम गए और वहां से वापस अब्दुल मुत्तलिब के ननहाल यसरब आए। यसरब बीमारियों का घर था कि जनाब अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु बीमार हो गए। काफिला चंद दिन ठहर गया कि आपकी तबीयत बहाल हो तो हम साथ ले चले, लेकिन भाईजान तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। काफिला मक्का आ गया और चंद दिन बाद हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। और ये खबर मक्कातुल मुकर्रमा में अब्दुल मुत्तलिब के खानदान पर बिजली की तरह गिरती है। सैयदा आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा ने अभी अपने माह तमाम को जी भर के देखा भी नहीं था और यार उनका जी चाहता था कि मैं उड़ के यसरब चली जाऊं, मट्टी के उस तोदे को देखूं, उसकी खाक को अपनी आंखों का सुरमा बनाऊं। लेकिन जिस अमानत का आपको अमीन बनाना था उसकी हिफाजत के जुमा ने हजरत आमिना को रोक लिया। मेरे नबी अभी दुनिया में नहीं आए भाई, शिक में मादर में है। 25 साल की उम्र में हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हो गया। और जब मेरे नबी की उम्र 6 साल हुई, चलने फिरने के काबिल हुए, सफर की सोबतें सहने के लायक हुए, तो आपने अपने सुसर जनाब अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह तआला अन्हु से अपने मन की कहानी कह डाली कि 6 साल जुदाइयों में गुजार दिए, अगर आप रुखसत अनायत करो, आरजू है उस खाक को आंखों का सुरमा बनाऊं। आपने अपनी जवां साला बहू सैयदा आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा को इजाजत दी और साथ एक खादिमा जिनका नाम उम्मे ऐमन रदी अल्लाह तआला अन्हा है उनको साथ भेज दिया। ये नफूसे कुदसिया मक्का से यशरब आए, 1 महीना या कुछ दिन ज्यादा ठहरे और फिर वहां से वापस लौट आते हैं। उसकी वजह यह थी भाई, जो भी आता हुजूर को देखता, पेशानी में नबूवत का नूर देखता तो बरमला कहता कि ये तो इस उम्मत का नबी है। लोगों का जब इकट्ठा हुआ, सैयदा आमिना फरमाती है मेरे दिल में खौफ पैदा हुआ कि कहीं ये मेरे बेटे मोहम्मद को गजंद न पहुंचाए। आप फरमाती ये खौफ मुझे वापस पलटने पे मजबूर कर देता है। आधा सफर तय कर लिया, आधा सफर बाकी था। रास्ते में अब्वा नामी एक बस्ती आई जहां सैयदा आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा आकर के रुक जाती है। आपको बुखार ने आ घेर लिया और आप जान गए कि ये बुखार जान ले लेगा। वक्त रुखसत उम्मे ऐमन से कहा कि मेरे बेटे को बाहिफाजत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा देना और फिर हुजूर को पास बुलाया। उधर बचपने की मासूमियत, पेशानी में नबूवत का नूर, माँ बेटे में खूब सी जाती है। 2-1 बातें की और फिर हमेशा के लिए पहाड़ों में सो जाती हैं। आप फरमाती बेटा कुल्लु हय्यिन मय्यितुन कुल्लु जदीदिन बालिन कुल्लु कबीरिन यफना वाना मैततुन व ज़िक्रा बाकिन व वलदतु तुहरा। फरमाया बेटा हर नई चीज ने
पुराना हो जाना है, हर बाकी ने फना हो जाना है। फरमाया बेटा मैं भी जा रही हूँ, लेकिन सुनो मेरा जिक्र बाकी रहेगा। फरमाया इसलिए कि मैं तेरे जैसा पाकीज़ा और सुथरा मोहम्मद छोड़ के जा रही हूँ। सांसों की माला टूट गई, मोती फिजा में बिखरे, माँ से लिपट के रोए, नन्हे नन्हे हाथों से काले पत्थरों की कब्र बनाई, उस पे आंसुओं का छिड़काव किया। फिर जहां तक माँ नजर आती रही, मेरे नबी पलट पलट के उन काले पत्थरों वाली कब्र को देखते हैं। मैं सैयदा आमिना के मजार पे हाजिर हुआ। ये मदीना से 350 किलोमीटर के फासले पर है। पहाड़ के नीचे खड़ा था, माहौल खामोश था, हवा का कहीं से कोई एक झोंका भी ना आया। लेकिन जब सैयदा आमिना के कदमों में जा खड़ा हुआ, ऐसा लगा कि अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजे ही खोल दिए। ओ भाई, आज भी जन्नत से ठंडी हवाएं सैयदा आमिना को सलाम करने आती हैं। हम सलाम करके रुखसत होने लगे। मेरे दिल में ये बात उतर आई। मैंने दोस्तों को कहा, यार आज हम भी जिस तरह हुजूर माँ से बिछड़े थे, पलट पलट के माँ को देखा था। मैंने कहा उसी अदा को अपनाते हुए रुखसत चाहे। यकीन जानिएगा, जब हमने पहली दफा सैयदा के मजार की तरफ पलट के देखा, हुजूर का बचपना और वो बचपने की तड़पती कहानी, माँ से बिछड़ते हुए हुजूर की के जो जज्बात थे, जब हमारी आंखों के सामने आए, तो फिर हमारी हिचकियां और सिसकियां मुकामे बदर तक थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। 6 साल की उम्र में अबवा के टीले पे माँ खामोश हुई। माँ को पलट पलट के देखते हैं। उम्मे ऐमन कहती हैं, मैं हुजूर को पहाड़ से नीचे लेके आई और पलट के देखा तो हुजूर साथ नहीं थे। फरमाती मैं जल्दी से फिर पहाड़ पे चढ़ी तो मेरी आंखें क्या देखती हैं, हुजूर माँ के सराहने खड़े हैं और वहां खड़े होकर कह रहे थे, अम्मी जी आप तो जानते हो कि मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं है। उम्मे ऐमन की जान निकल गई, सीने से लगा लिया। मेरे नबी फरमाया करते थे, उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ लगती है। एक साहबी किसी को आर देते हुए कह रहे थे, काली माँ के बेटे। हुजूर नाराज हो गए, जलाल में आ गए। फरमाया पैमाना अच्छा लग गया, पैमाना अच्छा लग गया, पैमाना अच्छा लग गया। फरमाया किसी गोरी रंगत वाली माँ के बेटे को काली रंगत वाली माँ के बेटे पे कोई फौकियत हासिल नहीं। फरमाया अगर है तो वो तकवा है। फरमाया मुझे जिसने जन्म दिया वो गोरी रंगत वाली, जिसने मेरी परवरिश की वो काली रंगत वाली। मेरे नबी फख्र से फरमाते हैं कि मैं मोहम्मद बैक वक्त 2 माओं का तन्हा बेटा हूँ। 6 साल की उम्र में अबवा के टीले पे माँ खामोश हो गई। अभी दुनिया में आए नहीं, बाप नहीं, 6 साल की उम्र है। माँ ना मक्के में बिछड़ी, माँ ना मदीने में बिछड़ी। ओ भाई कहाँ बिछड़ी, अबवा के टीले पे खामोश हुई। मेरे रसूल मक्का आए, दादा जान ने सीने से लगाया, अपने पोते को बेपनाह मोहब्बतें दी। खाना खाते हैं, साथ बिठाते हैं, सोते हैं, पहलू में लटा लेते हैं। जिल्ले काबा अब्दुल मुत्तलिब की मसनद बिछती थी, बेटों को भी जरूरत नहीं थी वहां बैठने की, लेकिन हुजूर लाडले बड़े थे दोस्त, दादे की मसनद पर बैठ जाते। दादा से बेपनाह मोहब्बत, बहुत बेपनाह प्यार नसीब हुआ। गम की कहानी टूटी नहीं, सैलाब थमा नहीं। 2 साल गुजरे, हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह तआला अन्हु का 82 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। जब मक्का के बाजार से जनाब अब्दुल मुत्तलिब का जनाजा उठा, आगे आगे जनाजा था और पीछे पीछे एक 8 साला बच्चा था जो मक्के की कभी इस दीवार से तो कभी उस दीवार से लिपट के रोता है। फिर मेरे नबी की कफालत का जुम्मा चचा जनाब अबू तालिब ने उठा लिया। बड़ी मोहब्बतें मिली चचा से। चचा ने भी खाना खाते साथ बिठाते हैं, सोते हैं तो पहलू में लटा लेते हैं। मैंने हुजूर का बचपन पढ़ा। अम्मा हलीमा फरमाती हैं, हुजूर को बचपन में भूख लगी भी होती ना तो कभी भूख का मुतालिबा नहीं किया था। नाराज ना होइएगा दोस्तों, हम बच्चे नहीं, बड़े हो गए, बुढ़ापे की तरफ सफर है। हमें वक्त पे खाना ना मिले, हम घर के बर्तन तोड़ देते हैं, गालियां देने वाले लोग हैं, खवातीन पे हाथ उठाने वाले हैं। मेरे नबी का बचपन इतना शानदार है, भूख लगी भी होती तो कभी भूख का मुतालिबा नहीं किया। परवान चढ़े भाई, फिर हुजूर कोहे सफा पे आए, भटकी कौम को ला इलाह की दावत दी। जो असली बदबख्त थे वो मुखालिफत पे उतर आए, और जो हुजूर के साथ, हुजूर के मुआवन मददगार थे, वो दीन की राहों पे हुजूर के साथ, अमल की राहों पे हुजूर के साथ चलने लगे। हुजूर ने ला इलाह की दावत दी तो हुजूर की तबलीग से मुतासिर होकर फर्द वाहद से लोग हुजूर के साथ जुड़ने लगे। और फिर मेरे भाई, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पैगाम मोहब्बत को लेके मैदान में है और हमने लोगों के रवैये पढ़े हैं। जिंदगी में बड़ी आजमाइशें, बड़े इम्तिहान आए। आमुल हुस्न आया, वो गम का साल जिसमें शफीक चचा
और आपकी रफीक हयात हजरत खदीजा का इंतकाल हो गया। उस साल का नाम गम का साल था। हुजूर घर में लग के बैठ गए, लेकिन फिर कार नबूवत की जिम्मेदारियां मेरे नबी को मैदान अमल में ले आती हैं। लेकिन अब के बार कौम के रवैये यकसर बदल गए। ला इलाहा की दावत देते हैं, वो गड़े खोते हैं। ला इलाहा की दावत देते हैं, कांटे बिछाते हैं। ला इलाहा की दावत देते हैं, ओजरियां पहनते हैं। ला इलाहा की दावत देते हैं, गले में रस्सी डाल के तौ देते हैं। कितने हैं दुख जो मक्का वालों ने दिए। 3 साल शब अबी तालिब में मेरे नबी मासूर रहे। सोशल बाइकाट हुआ, माओ की छातियों से दूध खुश्क हो गया। बच्चे भूख की वजह से रोते हैं, माएं थप्पड़ नहीं मारती, मुंह पे हाथ नहीं रखती, बस इतना कहती हो बच्चों तुम्हारे रोने की आवाज काफिरों ने सुनी तो वो तुम्हारे नबी मोहम्मद को ताने देंगे। बच्चे खामोश हो जाते। सहाबा कहते हमने पत्ते खा के गुजारा किया, हमने चमड़े भिगो करके गुजारा किया। एक साहबी का बयान नजरों से गुजरा, कहते इतनी शिद्दत की भूख लगी हुई थी, एक गीली जगह पांव आया, न जाने क्या था वो, उठाया खा लिया। आज तक ये खबर नहीं कि वो चीज है क्या थी। इन राहों पे चलने वालों को आजमाया जाता है, दुखों से 2-4 किया जाता है। और भाई हुजूर मक्का से ताइफ चले गए, वो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उन्हें अपनी बात सुनाता हूं। उन्होंने भी दावत को मुस्तरद किया। सुनिएगा दोस्त, हुजूर ताइफ से वापस तशरीफ लाने लगे। ताइफ का बाजार और 2 रोया कितारे, उबाश लड़के और उनके हाथों में पत्थर हैं। मेरे नबी फरमाते मैं कदम उठाता हूं तो वो मेरे पांव पे पत्थर मारते हैं। मुझे दर्द हुआ, मैं दर्द की शिद्दत की वजह से जमीन पे बैठ गया। वो नालायक आगे बढ़े, कंधों से पकड़ा, खड़ा किया, फिर चलने पे मजबूर किया गया। मेरे नबी फरमाते मैं दूसरा कदम उठाता हूं तो वो मेरे दूसरे पांव पे पत्थर मारते हैं। बदन लहू लहान है। और जवानों, इस दीन की बुनियादों में पैगंबर का खून है। ये दीन बड़ी मेहनत से आया है। मैं ओकाड़ा एक जगह खिताब कर रहा था, कुछ लोग नाराज हो गए। सच आखी थे पाबड़ बचते ने। और इकबाल ने कहा था कि चमन में तलख नवाई मेरी गवारा कर, कि जहर भी करता है कभी कारे तरिया की, कड़वी कुसैली। मैंने कहा कबूल कीजिएगा, बरमला बरजस्ता कहा था, हुजरों में नहीं, नजराने वसूल करके नहीं, सिर्फ हाथ चुमा के नहीं। ये दीन मेहनत से आया है, ये दीन जुस्तजू से आया है, ये दीन तबलीग से आया है। मोहम्मद अरबी इस पैगाम को लेके ताइफ तशरीफ लाते हैं। ताइफ वालों ने पत्थर मारे, अर्ज किया गया इनके लिए बद्दुआ कर दे। फरमाया मैं रहमत बन के आया हूं। और वहां एक जुमला इरशाद फरमाया जो उलमा के लिए था, मुबल्लिगीन के लिए था। मेरे नबी ने फरमाया था मुझे इनकी नस्लों से उम्मीद है कि वो मेरे साथ चलेंगे। बास का नताइज आने वाली नस्लों पे छोड़े जाते हैं। हम तो बास का दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, जो खातर खा हमें नताइज मतलूब होते हैं वो नताइज नहीं मिलते। जिसकी घर नहीं चलती मस्जिद में तो जरूर चलती है। हम दिल बर्दाश्ता होकर कहते हैं यार हमें तो सजदे से गरज है, यहां नहीं तो वहां सही, सादिका आबाद नहीं तो हम सिंध चले जाएंगे, नहीं तो हम रहीम यार हाँ चले जाएंगे, काम भी करना है ना, ऐसे नहीं थे किधरे और सही। हुजूर का ये फरमान रोशनी देता है। फरमाया मुझे इनकी नस्लों से उम्मीद है कि वो मेरे साथ चलेंगे। आपकी दीवार के मुत्तसिल सिंध शुरू होता है। आप जानते हो जब नगीद नामी बेटी के सर से राजा दहर के गुंडों ने दुपट्टा खींचा तो उसने या अलल हज्जाज कहा। हज्जाज तारीख का काबिल जिक्र इंसान नहीं गुजरा, बहुत बड़ा बदमाश, उसके हाथ हजारों लोगों के खून से रंगे हुए हैं। उस समाज का बदमाश आदमी कहता है बहन में हाजिर। उसने फिर अपने भतीजे अपने दामाद को यहां भेजा और वो हिंदुस्तान के तख्त ताज को रोनता हुआ यहां आया और उस बेटी के सर पे इज्जत की रिदा रखी। और फिर वो यहां 4 साल गुजार के गया। मकरान से मुल्तान तक इन्हीं राहों से गुजरा भाई। मकरान से मुल्तान तक उसने सफर किया। अपने किरदार से, अपने अखलाक से, अपनी गुफ्तार से 1 लाख इंसानों को मोहम्मद अरबी का गुलाम बना दिया। वो खुद चला गया लेकिन यहां दीन छोड़ गया। उस शख्सियत को जमाना मोहम्मद बिन कासिम के नाम से जानता है। फरमाया मुझे इनकी नस्लों से उम्मीद है कि वो मेरे साथ चलेंगे। नताइज आने वाली नस्लों पे छोड़े जाते हैं। हुजूर ताइफ से मक्का आए, उम्मे हानी का घर है, हुजूर महवे इस्तराहत है, आंखें बंद दिल जाग रहा है। अल्लाह ने जबरील अलैहिस्सलाम को 70,000 नूरी फरिश्तों के झुरमट में भेज दिया, जबरील जाओ और मेरे महबूब को मेरे पास ले आओ। जिन्हें इज्जतें मिलती हैं उन्हें आजमाया जाता है। अभी आए नहीं, बाप नहीं, 6 साल की उम्र है, माँ नहीं 8 साल की उम्र है, दादा नहीं, आमुल हुज़्न, शब अबी तालिब, मक्के के तलख रवैये, ताइफ के पत्थर। और हम देखते हैं कि पढ़ते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के घर में महवे इस्तराहत है। जबरील ने अर्ज किया मालिक क्या हुक्म है?
फरमाया जबरील दस्तक नहीं देनी, ले सांस भी आहिस्ता कि दरबार नबी है। छत पे चढ़ो, छोटा सा सुराख करो और उस सुराख से अंदर दाखिल हो जाओ। जबरील के 600 नूरी पर है, एक पर को खोले जमीन और आसमान को ढांप ले। आज सिमट के उस छोटे से सुराख से अंदर दाखिल हुए, दुनिया वालों को तालीम देंगे, बड़ों के पास आओ तो बड़ा बन के नहीं छोटा बन के आया करो। जबरील कदमों में खड़े हैं, मालिक हुक्म क्या है? फरमाया या जबरीलू कब्बिल कादमे है, कब्बिल बाबे तफईल से है और ये कसरते माखज को चाहता है। कब्बिल कादमहू वाहिद का सीगा नहीं, तस्निया का सीगा है। कादमे है, एक कदम की नहीं, दोनों की बात है भाई, एक बार का नहीं, बार बार का तकाजा है। फरमाया जबरील मेरे नबी के कदमों से लिपट जाओ और इन कदमों के बार बार बोसे दो। काफूरी होंठ, ठंडे होंठ मेरे नबी के तलवों से मस है। मेरा विजदान कहता है जब काफूरी होंठ मेरे नबी के तलवों से मस हुए, आरज़ू जरूर मछली होगी, या अल्लाह तेरा नबी अभी बेदार ना हो, मैं जी भर के इन कदमों के बोसे तो ले लूं। न जन्नत की कलियों में देखा मजा जो मोहम्मद की तलियों में देखा, मजा जो मोहम्मद की, मजा जो मोहम्मद की 3-4 बार याह ना लई स्वाद ही नहीं आता। न जन्नत की कलियों में देखा मजा जो मोहम्मद की। यहाँ एक अजाला करता चलो, कुछ लोग कहते हैं जबरील उस्ताद है और हुजूर शागिर्द है। मुझे बताइएगा ये एजाज उस्ताद का है या शागिर्द का है? बेटा बाप के पहुंचों में, शागिर्द उस्ताद के पहुंचों में, मुरीद शेख के पहुंचों में एजाज किसका है? बेटे का। एजाज किसका है? शागिर्द का। एजाज किसका है? मुरीद का। जबरील उस्ताद नहीं भाई, हुजूर के दर के खादिम है। अलिफ लाम मीम हुरूफ मुक़त्तआत में से है, राज़ो न्याज़ की बातें हैं, अल्लाह जाने ये उसका रसूल जाने। लेकिन उलमा ने इससे कुछ मुरादें ली हैं। उलमा कहते हैं अलिफ से मुराद अल्लाह, लाम से मुराद जबरील और मीम से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ एक सवाल तो खाने ज़हन में उतरा, अल्लाह अलिफ से, मोहम्मद मीम से, जबरील तो जीम से होना चाहिए, यहाँ लाम से जबरील क्यों कहा गया? हंस आएगा, ध्यान से सुनिएगा। उलमा कहते हैं ये कुरान मुहावरे अरब के मुताबिक उतरा है। अरब वाले जब नामों को इख्तिसार से लिखते, जो आका का नाम होता उसके नाम का पहला हरफ लिखते और जो खादिम होता उसके नाम का आखिरी हरफ लिखते। यहाँ जीम नहीं, यहाँ लाम लाया गया है। जबरील ने पहुंचू में हुजूर बेदार हुए और जबरील ने रब का पैगाम दिया, अल्लाह आपके दीदार का मुश्ताक है। बताइएगा कलेजे में ठंड नहीं पड़ गई? जबरील पैगाम क्या लेके आए हैं? अल्लाह आपके दीदार का मुश्ताक है। जिसे इज्जतें मिलती हैं उन्हें आजमाया जाता है। भाईजान शक्के सदर हुआ, फिर बुराक तैयार है, मेरे नबी तशरीफ फरमा हुए। बुराक की जहां नजर जाती है वहां उसका कदम उठता है। और सुनिएगा यार, जहां रुकिएगा जरा को, मेरे नबी जब बुराक पे बैठते हैं तो हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू क्यों आए? हुजूर को उम्मत याद आ गई। हुजूर ने इस उम्मत से बड़ा ही प्यार किया यार। फजल बिन अब्बास कहते हैं जब हुजूर को मरकद नूर में उतारा गया ना, तो मैंने देखा लब हरकत में थे। मैंने कान करीब करके सुना तो हुजूर उस वक्त भी फरमा रहे थे, अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। आज़ाब की आयतें उतरी, हुजूर का रंग मुतगय्यर हो गया। आप मजमा सहाबा से उठे, बाहर चले गए। सहाबा समझे शायद हुजूर किसी हाजत के लिए गए हैं। थोड़ी देर इंतजार किया, तशरीफ ना लाए तो तलाश करना शुरू कर दिया। 1 दिन, 2 दिन, हत्ता के तीसरे दिन का सवेरा तुलू हो गया। मिंबर उदास, गलियां उजड़ गईं। बिलाल हबशी मदीने की गलियों में चीखे मार मार के रोता है। सैयदा फातिमा घर में गशी पर गशी आ रही है। वासफ अली वासफ कहते शरफ मकान का नहीं होता, मकीन का होता है। वो तो यशरब था, बीमारियों का घर था, लेकिन सोने मोहम्मद के कदम लगते हैं, अल्लाह मदीने की खाक में शिफा रख देता है। तीसरा दिन हुआ, साहबा जंगल में चले गए। मैंने उस जंगल की ज़ियारत की है, अब वहां घर बन गए। वहां एक चरवाहा मिला, उससे कहते यार इस नाम का शख्स तो नहीं तूने देखा? रूमी उस गुफ्तगू को बयान करते, गुफ्त चोपा मर मुरा मालूम नेस मन नमी दानम मोहम्मद नाम केस ई कदर दानम के अंदर तीरा कार जार भी नालत कसे लैलो नहार। वो कहते इतना मीठा नाम तो मैंने सुना ही पहली दफा है। हाँ मैं इतना जरूर जानता हूँ, वो सामने गार देखते हो जिसका नाम जबले सला है, वहां एक जवान है जो सुबह भी रोता है, शाम भी रोता है, और कहता वो मेरी बकरियां देखो हल्का बनाए बैठी है, ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है। जब वो रोती हैं तो ये भी वो रोते हैं तो ये भी रोती है। साहबा ने पूछा वो रोने वाला क्या कहता है? उसने कहा जब उसके लबहाए मुबारक खुलते हैं तो वो रब्बे हबली उम्मती की सदाएं देते हैं। बेजान जिस्मों में जान आई,
अंदर दाखिल हुए, तड़पती कहानी है दोस्त, नुकीले पत्थर पे मेरे नबी की पेशानी झुकी है और रो रो के मेरे लिए आपके लिए अल्लाह से अर्ज कर रहे थे, अल्लाह मेरी उम्मत की मगफरत फरमा दे। अबू बकर आगे बढ़े, अर्ज की हुजूर 3 दिन जुदाइयों में गुजर गए, मदीने की उदासी, बिलाल की तड़पती कहानी, हुजूर चलिए वापस। फरमाया मुझे उम्मत की मोहब्बत रुला रही है, फरमाया उतनी देर तक सजदे से सर नहीं उठाऊंगा जितनी देर तक अल्लाह उम्मत के मामले में मुझे राजी नहीं कर देता। सैयदा फातिमा को खबर मिलती है, आप मदीने की औरतों को लेके उस गार की तरफ बढ़ती हैं। रावी लिखता है सैयदा के तन पे जो रिदा थी ना, उस पे 14 पैबंद लगे थे। मालिके कौनैन है को पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। इमाम की बेटी सर पे रिदा और उस पे 14 पैबंद। आप गार की तरफ बढ़ी, साहबा पीछे हटे, फरिश्ते भी हट गए। आप अंदर दाखिल हुई, कहती अब्बू जी बेटी आई है, जिगर का टुकड़ा आया है। फ़अजलसहा फ़ी मजलसिही, जिसके लिए मसनद बिछा देते थे, फातिमा आई है। हुजूर बेटी को भी यही फरमाते, बेटा उम्मत की मोहब्बत, मुझे उम्मत की मोहब्बत तड़पा रही है और उतनी देर तक तेरा बाबा सजदे से सर नहीं उठाएगा जितनी देर तक अल्लाह वादा नहीं कर देता। जवानों, जब हुजूर ने सजदे से सर ना उठाया तो फिर सैयदा अपने मालिक से अर्ज करती, मालिक मैंने सुना है जब फकीरों और दुर्वेशों की दुआएं मुस्तजाब नहीं होती तो वो सरों से पगड़ियां उतार के ऐ अल्लाह तुझसे दुआ मांगते हैं, तुझसे भीख मांगते हैं, तू अपने बंदों को खाली नहीं मोड़ता। अर्ज किया मालिक आज तेरे नबी की बेटी फातिमा जिस पर तूने ततहीर की आयतों को नाजल किया है, मैं सर से दुपट्टा उतार के अपने बाबा की उम्मत के लिए ऐ अल्लाह तुझसे भीख मांगती हूँ। सैयदा का हाथ रिदा की तरह बढ़ा, जवानों कोहराम मच गया, बादलों की ओट में सूरज ने मुंह छुपा लिया। ऐसा लगा कि कयामत आ गई। रूमी कहते फिर एक सदा उठी, पस निदा आमद ज़ेजस्ता काए रसूल, मन दुआए फातिमा करदम कबूल, कर तलब कर दी जमीन व आसमां, जुमलाए बख्श दे मजदर यकज़मा। फरमा जबरील देर ना करो, जल्दी जाओ, मेरे नबी से कहो सजदे से सर उठा ले, हमने फातिमा की दुआ कबूल कर ली है। जैसे आप कहोगे हम उम्मत से वैसे ही मामला फरमाएंगे। आइए सादकाबाद में बसने वालों, मैं आपसे अर्ज करूंगा, अभी मैं और आप अगर तखय्युलात में गोता लगे और हम खुद को खींच के उस गार में ले चलें, एक जानिब खुद को खड़ा कीजिएगा और एक जानिब मोहब्बत की विशी कायनात देखिएगा। 3 दिन तक रो रो के उम्मत के लिए दुआएं मांगने वाले, अबू बकर तड़प के अर्ज करने वाले, बिलाल मदीने की गलियों में दीवाना वार फिरने वाले, बेटी फातिमा घर में गशी पर गशी आ रही है, मदीना तड़प सा गया। रसूलुल्लाह रो रो के इस उम्मत के लिए दुआएं मांगते हैं। मोहब्बत अमल मांगती है, मोहब्बत दावा है, अमल दलील है। नारे तो बड़े हैं हमारे पास लेकिन खोखले हो चुके। मेरे रसूल ने हमें इतना प्यार दिया, मुझे बताइएगा हमने उसके सिले में क्या दिया। नाराज ना होइएगा, अखलाक खोखले, फसाद के खोखले दाने पे हम जवान हैं, चले अकड़ अकड़ के, बोले बिगड़ बिगड़ के, मस्ती ही मस्ती, नशा ही नशा, तेवर बने। 5 वक्त अल्लाह का मुरादी हय्या अला सलाह की सदाएं देता है, कान पे जू तक न रहेंगी। वाइज नसीहत करने लगा, गफलत की पट्टी ना उतरी। हम तो आखिरत की कहानी सुनाएं तो लोगों के झगड़े होते हैं। मौलवी तकरीर अपने पास रख, शबाब हमेशा रहेगा, उम्र के साए नहीं डलेंगे, मौत की हिचकियां नहीं आएंगी, खुदा की कचहरी में पेशी नहीं होगी। ओ भाई, इस कभी आसमान की छाती पे चमकता चांद देखा है जवानों आपने? ये एक सूरत में नहीं होता, ये कभी कमर होता है, कभी बदर होता है, कभी हलाल होता है। हमें जवानों इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना। यहाँ जो आया है वो जाने के लिए, जो पैदा हुआ है वो मरने के लिए। कुल्लु मन अलैहा फान, जो भी है उसको फना है, बका अल्लाह को है, यहाँ किसी ने भी बैठ नहीं रहना। हम सब ने अपनी अपनी बारी पे शहर खामोशा को आबाद करना है और ये सांसों का शोर, ये डोर कब टूट जाए मोती खाक में मिले, हमें कोई खबर नहीं। ये कंधे गवाह हैं, हमने कड़ियल जवानों को मना मन पट्टी के नीचे छोड़ के आए हैं। अल्लाह की धरती पे अकड़ अकड़ के चलने वाले आज मना मन पट्टी के नीचे हैं। कल नमाज का आगाज करने वाले आज कब्र की तन्हाइयों में है। वो भाई प्यार तो तकाजा चाहता है, हमने उसके बदले में क्या दिया? रसूलुल्लाह बुराक पे तशरीफ फरमा हुए और आंखों में आंसू आए। क्यों आए भाई? हुजूर को अपनी उम्मत याद आ गई। मेरे नबी अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रहे हैं और उस वक्त भी उम्मत का नगमा छेड़ दिया।
मैं बात को मुख्तसर कर लेता हूँ। हुजूर मस्जिद अक्सा तशरीफ लाए, नबियों को इमामत का शरफ मिला, जबरील जो है नूरी सीढ़ी आई, जबरील के परों पे तशरीफ फरमा हुए, रफ रफ आया, एक जगह आके वो भी रुक जाता है। फिर मेरे रसूल फरमाते, एक आवाज आई, प्यारे अहमद कदम उठाइए। मेरे नबी फरमाते, मैंने डरते डरते झिझकते झिझकते एक कदम उठाया। सफर कितना तय किया? जितना 5 मराहल में किया। एक कदम उठाए, इतना सफर तय कर लिया। आवाज आती गई, कदम बढ़ते गए, काबा कोसैन की मंजिलें मिली, कुर्बे खास में पहुंचे, मुकाशफात हुए और वहां राज़ो न्याज की बातें हुई। उम्मत को मेरे रसूल को 50 नमाजों का तोहफा मिला। जब कुर्बे खास में पहुंचे तो अल्लाह ने फरमाया, महबूब आपको किस चीज से मुशर्रफ किया जाए? अर्ज की, मालिक मेरी आरजू है कि तू मुझे अपना बंदा कह के पुकार दे। जिन्हें इज्जतें मिलती हैं उन्हें आजमाया भी जाता है। कुर्बे खास में पहुंचे, 50 नमाजों का तोहफा मिला। आप तशरीफ लाए तो मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होगी। कहा ये 50 नहीं पढ़ेंगे, मुझे उम्मतों का तजर्बा है। पहली उम्मतों पे 2 नमाजें थी, फजर और असर, 2-2 रखते थे, उसमें अजान भी नहीं थी। कहा ये 50 नहीं पढ़ेंगे, कमी की दरखास्त करें। हुजूर तशरीफ ले गए, हाजिर हुए, 5 कम कर दी गई। ये 9 दफा ऐसा हुआ। जब 5 रह गई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, 1 दफा और जाइए। हुजूर फरमाते, अब अल्लाह से हया आता है कि ये 5 भी नहीं पढ़ेंगे। नाराज ना होइएगा, हमारे रवैये इतने छोटे निकले, हमने इतनी अजीब बात कर दी, और बल्कि इसको तो असराहे तमस्खुर करते हैं कि हुजूर 1 चक्कर और लगाते तो हमारी जान ही छूट जाती। तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती है जवान। उम्मत को नमाज दी और उम्मत ने क्या किया? बहाने लगाए। उम्मत ने कहा चक्कर लगता तो जान छूट जाती। और हुकूकुल्लाह में सबसे पहला सवाल क़यामत के दिन नमाज का होगा। सबसे पहला सवाल नमाज का, और सैकड़ों मरतबा मुख्तलिफ सीगों के साथ कुरान मजीद में हमें नमाज की तलकीन की गई। मेरे नबी बवक्ते विसाल लबों पे क्या कलिमात थे, अस्सलात अस्सलात। और मेरे नबी क्या फरमाते, मुझे तुम्हारी दुनिया से 3 चीजें महबूब है, खुशबू, मनकुहा उल्टी, और तीसरा फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। साहबा कहते हैं हम मुसलमान और काफिर के माबैन जो फर्क रखा था वो नमाज का था। और हमारे असलाफ को पढ़िएगा, सादी शेराजी फरमाते बेनमाजी को कर्ज ना दो। आप फरमाते जो अल्लाह का कर्ज अदा नहीं करता वो तुम्हारा कर्ज किस तरह अदा करेगा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न करो। और सुल्तान बाहू फरमाते हैं बेनमाजी से खंजीर भी पनाह मांगता है। आज हम कहाँ खड़े हैं? एक घर में 8-8 अफराद, सब पे नमाज फर्ज। कितने लोग मस्जिद में आते हैं? घरों की तलाशी लो, हमारे घर में मेहमान आ जाए तो मुसल्ला नहीं मिलता, दुरूद की तस्बीह नहीं मिलती। हम कहाँ खड़े हैं भाई? 5 नमाजें हुजूर लाए, हमने क्या कदर की? एक साहबी, एक औरत हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई, अपने 3 गुनाहों का इजहार करती है तड़प के। हुजूर मैं शादीशुदा हूँ, शोहर दियारे गैर चला गया, नफ्स पे कंट्रोल ना रख सकी, जिना हो गया, मेरे पेट में बच्चा हुआ, मैंने उसको ज़बह कर दिया, मेरे पास सिरके का मर्तबान था, मैंने उसमें उसको फेंक दिया, गंदा सिरका बेचती रही। ये 3 गुनाह अब मुझे चैन नहीं लेने देते, मुझे पाक कीजिए मेरे रसूल। मेरे नबी ने 3 गुनाहों की सजा बयान की। तूने जिना का इर्तिकाब किया, तुझे रजम किया जाएगा। तूने एक इंसान को कत्ल किया, तुझे कत्ल किया जाएगा। तीसरा फरमाया तू गंदा सिरका बेचती रही, गुनाह कबीरा किया, फरमाया इसकी अल्लाह से माफी चाह। 3 गुनाहों की सजा बयान की। और फिर मेरे नबी फरमाते तू जिस दर्द से रोती हुई मेरे पास आई, मैं मोहम्मद तो समझा शायद के तेरी नमाज़े असर कज़ा होगी हो, शायद के तेरी नमाज़े असर। आज हमारी कितनी कज़ा होती हैं? सिर्री सख्ती कितना बड़ा नाम है यार। आपका बेटा, जवान बेटा दुनिया से चला गया, दौरान तदफीन नमाज असर चली गई, सारा शहर अफसोस के लिए आया, तड़प के। आप फरमाते पुत्र चला गया, सारे शहर ने अफसोस किया है। मेरी नमाज चली गई, किसी ने भी अफसोस नहीं किया। हमें अपनी नमाजें जो छूटती उस पर अफसोस होता है। नमाज की दावत है तो हम कहते कल से शुरू करेंगे, नमाज की दावत है तो हम कहते मौलवी साहब कपड़े पाक नहीं। कपड़ों की कहानी नहीं दोस्तों, मन गंदे हैं, मन गंदे हैं। अगर मन सुथरे होते ना तो पेवंद लगे भी कपड़े अल्लाह के दरबार में खड़ा कर। आज किसी को नमाज की दावत दो तो लोग अजीबो गरीब बातें लेके बैठ जाते हैं। मेरे हिस्से दी भी पढ़ाया, हमें 5 नमाजें मिली, हमने उसकी क्या कदर की भाई। मैं और आप अगर अपनी नमाजों का हिसाब लगाए तो देर लगेगी। अभी 2 मिनट में हिसाब करके बता देंगे हमने जिंदगी में नमाजें पढ़ी कितनी हैं। किसी के पास फजर की नमाज है, किसी के पास सिर्फ एक जुमा है, और किसी के पास सिर्फ एक ईद की नमाज है।
اچھا جو سال بعد اللہ کے گھر میں آیا ہے وہ تو قدم رکھتا مسجد میں تو تڑپ جاتا. 1 سال ہو گیا رب کے حضور سجدہ ہی نہیں کیا. یہ پیشانی تو اللہ نے سجدوں کے لیے بنائی تھی. میں کہاں بھٹکا رہا, کہاں الجھا رہا, اس کی دہلیز سے دور رہا. مسجد میں آتا تو پیشانی سجدے میں رکھ کے تڑپ جاتا کہ مالک آج وعدہ کر کے جا رہا ہوں میں آئندہ نماز نہیں چھوڑوں گا. لیکن جو سال بعد آیا نالائق, اور اس کے رویے آپ نے بھی دیکھے ہم نے بھی دیکھے, اور وہ ازراہ تمسر کہتا ہے. اگر کوئی کہے گا نا آپ تشریف لائے ہیں, وہ کہتا ہے کوئی کافر ہو کے مرنا ہے. بے نمازی کو ذلیل کر کے مارا جائے گا, بے نمازی کا چہرہ کالا کر دیا جائے گا, بے نمازی کو اوندا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا, بے نمازی کی قبر تنگ کر دی جائے گی, اس کی پسلیاں توڑ دی جائیں گی. سنیے گا دوست, قیامت کو اللہ فرمائے گا مجھے سجدہ کرو. اس دن بے نمازی بھی چاہے گا, ساری زندگی نہیں منی, ہاں حی علی الصلاح کی صدائیں گونجی لیکن پرواہ نہ کی, لوگ دعوت بھی دیتے رہے اور میں ان کے ساتھ مذاق اڑاتا رہا. وہ بھی کہے گا اس دن ساری زندگی اللہ دی نہیں منی, آج ہی سجدہ کر لوں. لیکن جوانوں اس دن باوجود چاہنے کے سجدہ نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ کمرے یوں اکڑ جائیں گی. اور بے نمازی کہاں کھڑا ہوگا؟ سنیے گا, فرعون, قارون, حامان کے ساتھ. آپ جانتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ جانتے ہیں ہم, یہ اللہ رسول کے دشمن ہیں. جس صف میں اللہ رسول کے دشمن ہوں گے اسی صف میں بے نمازی کھڑا ہوگا. وہ میں منڈی بھاول دن ایک جگہ خطاب کے لیے گیا, کوئی ساگر نے کہا تھا نا کہ کون کہتا ہے کہ ظلمات نے دم توڑ دیا. ہم لوگ تو آج بھی اندھیروں میں کھڑے ہیں. جماعت کا ٹائم تھا, ایک ذات کا مسلی ہمارے ساتھ کھڑا ہو گیا, چودھری صاحب نے کھینچ کے پچھلی صف میں کر دیا. وہ کہتا تیرے نال تو میری نماز بھی نہیں ہوتی, اور کمی کے ساتھ کھڑا ہونا توہین جانتے ہو, اور جو اللہ رسول کے دشمن ہوں گے ان کے ساتھ کھڑا ہونا اعزاز کی بات ہوگی. ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں, ہم نے اس نماز کی قدر کی. اور یار آج کی شب میں, آج کس درس قرآن میں وعدہ کرو کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. بھائی جان گھروں میں بھی مسلح بچھاؤ, یار بیٹیوں کو بھی مسلح دو. موبائل لے کے دے دیا, گاڑیاں لے کے دے دی, دنیا کی ہر آسائش دے دی, نہیں دیا تو مسلح نہیں دیا, نہیں دی تو درود کی تسبیح نہیں دی. ہم نے تو اپنے اسلاف کو پڑھا ہے وہ اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کرتے ہیں. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کتنا بڑا نام ہے, کاکی ہندی کا لفظ ہے. اس نام سے آپ نے شہرت کیسے پائی؟ آپ کی ماں بچپن میں بیٹے کو مسلح دیتی ہیں, کہتی پتر سجدہ کر, اور سجدے کے بعد ہاتھ اٹھا کے رب سے دعا مانگ کے اللہ تجھے رزق دے. بیٹا دعا مانگتا ہے, ماں تازہ کھانا بنا کے کمرے میں رکھاتی ہے, بیٹا جاتا ہے کھانا کھاتا ہے. رب سے محبت کا تعلق جوڑنے کے لیے ماں کھانا بنا کے رکھتی ہے, بیٹا کبھی کبھی اظہار بھی کرتا ہے, ماں میرا مالک کتنا مہربان ہے, میں سجدہ کرتا ہوں تو وہ مجھے تازہ کھانا دیتا ہے. ماں راضی ہوتی, یا اللہ تیرا شکر ہے, قطب الدین تیرا بندہ ہے, تیرے در کا بیکاری ہے, تیرے حضور جھکنے والا ہے. آپ فرماتی ایک دن ہوا اس طرح کہ میں کہیں کام کی غرض سے گئی تھی, آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی. فرماتے دل ڈوبنے لگا, دل خوف کھانے لگا, اللہ میں نے بڑی محنت سے اپنے پتر کا تعلق تیرے ساتھ جوڑا ہے, مالک مہربانی کرنا آج کہیں وہ محبت کا رشتہ کمزور نہ پڑ جائے, کیونکہ کھانا بنانا میں نے تھا لیکن آج میں گھر پہ نہیں ہوں. آپ فرماتی گھر آئی, بیٹا محو استراحت تھا. فرماتی جب بیدار ہوا تو میں نے جھجکتے پوچھ لیا, قطب الدین کھانا کھایا؟ کہا اماں آج تو کھانا بڑا مزیدار تھا, کھانے تو پہلے بھی کھائے لیکن جو کھانا آج ملا وہ کھانا پہلے سے زیادہ بہتر تھا. اور بھائی مائیں جوڑتی تھی رب سے, مائیں سجدے دیتی تھی, مائیں جو ہے وہ اللہ کے حضور جھکاتی تھی. پردے میں بیٹھی ہوئی مائیں بہنوں بیٹیوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ ہمارا جو منصب ہے, ہمارے اوپر جو تقاضے ہیں, بچے کورا کاغذ ہوتے ہیں, تحریر آپ نے لکھنی ہے, انہیں بایزید کا جانشین آپ نے بنانا ہے, بختیار کاکی کا جانشین آپ نے بنانا ہے, عمل کی راہیں آپ نے دینی ہے. چھوڑیے گا موبائل کی جان, چھوڑیے گا یار یہ جو ہم جن راہوں پہ چلے ہیں, آئیے اپنی نسلوں کی اچھی تربیت کریں, انہیں سجدے دیں تاکہ قیامت کے دن نہ انہیں رسوا ہونا پڑے نہ ہمیں رسوا ہونا پڑے. آج کی بزم کا وعدہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ, ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے. اور آخر پہ یہ بھی عرض کروں گا, اور یہ بڑی اہم 2-4 باتیں ہیں, اسے بھی دل کے کانوں سے سنیے گا. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی شب گئے تو وہاں راز و نیاز کی باتیں ہوئی, اور ان راز کی باتوں میں ایک بات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے ہمارے تک پہنچی. بہت بڑی بات ہے. عائشہ فرماتی ہے دریائے رحمت جوش میں تھا,
हुजूर ने मुझे इख्तियार दिया, आयशा जो मांगोगी अता होगा। अर्ज की हुजूर अगर आप मुझे इख्तियार दें तो मैं अपने वालिद गिरामी से मशवरा कर लूं। कहा ठीक है आप मशवरा कर ले। आपने आकर के सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अर्ज किया, अब्बाजान हुजूर ने इख्तियार दिया जो मांगोगी अता होगा, तो आप मुझे मशवरा दें मैं हुजूर से क्या मांगू। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, बेटा हुजूर से अर्ज करना कि मिराज की शब जो राज़ो नियाज की बातें हुई थी उन बातों में एक बात इरशाद फरमा दे। और साथ वादा ले लिया कि मुझे भी आके बताना है। आके अर्ज किया, हुजूर मैंने मशवरा कर लिया है और मशवरा ये है कि मुझे बताएं कि जब अल्लाह के पास आप तशरीफ ले गए, हाज़िर खिदमत हुए, राज़ो नियाज की बातें हुई, उनमें से कोई एक कलेमा इरशाद फरमा दे। तो मेरे नबी फरमाते हैं कि जो किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ेगा वो बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाएगा। वादा किया था, जाके वालिद गिरामी को बताया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर फूट फूट के रोने लगे। कहा अर्ज के अब्बाजान ये तो बहुत बड़ी बात है। आप फरमाते हैं कि तस्वीर का दूसरा रुख देखो, जो टूटा दिल जोड़ेगा वो जन्नत में जाएगा और जो कोई किसी का दिल तोड़ बैठे वो तो सीधा जहन्नम में जाएगा। आज कैंचियां हैं हमारे पास, सुई धागे नहीं, आप जोड़ते नहीं, हम काटने वाले बन गए। ये जुबानें जहर उगलने लगी। हाँ, छोटी छोटी भाई पे 1 इंच दीवार रखने पे भाई भाई से नाराज हो गया, ज़बा कर दिया। भाई से नाराज हुआ तो 20 साल भाई ने भाई को मुंह ना लगाया, और जो नाराज हुआ और वो फखर से बता भी रहे कि 20 साल हो गए भाई ने मुंह नहीं लाया, थोक के नहीं चढ़ता। मैं कहता हूं यार तुम्हें माजी ना याद आया, तुम्हें अपना बचपन ना याद आया, तूने माजी के जो ना वो दरीचों में झांक करके वो खूबसूरत मंजर ना याद आया। एक घर में रहते थे, एक चारपाई पे लेटते थे, एक दूसरे के लिए दीवार बनते थे, एक दूसरे के साथ बैठ के खाना खाते थे, उंगली थाम के स्कूल जाते थे, उदासियां थी, प्यार की एक कहानी थी, दीवार बनते थे। यार हमें याद ही ना आया। 1 इंच में भाई ने भाई के साथ ताल्लुक तोड़ा और फिर नाराजगी संभाल के रखी। कल को बेटी ने बड़ी होने, इसका निकाह करने मेरी जरूरत पड़ेगी। कल को जाहिर है जब नए लोगों में रिश्तेदारी होती तो लोग पूछते हैं कि आपका बड़ा भाई आपका छोटा भाई क्यों नहीं आया। और ये नाराजगी संभाल के इसलिए बैठा कि कल को आएगा तो ठुटे मार के घर से निकालूंगा, कल को आएगा तो रुसवा करके घर से निकालूंगा। ये भी अल्लाह की रजा के लिए ना गया और उसने भी अल्लाह की रजा के लिए माफ ना किया। ये सिर्फ वो कहते हैं गधे को बाप कहने वाली कहानी, सिर्फ लोगों से बचने के लिए ये भी जाके माजरत करता है। वो भी इतनी जल्दी नहीं मानता, ये बरादरी भी, ये रिश्तेदारों को भी लेके जाता है और वो ठुटे भी मारता है। वो भी आता है और आके चला जाता है। ना अल्लाह की रजा के लिए वो आया, ना इसने माफ किया। और हम नफरतें ही लेके कब्र में चले जाएंगे क्या? हम दीवारें खड़ी करके चली जाएंगे? और हम तो उन लोगों को भी जानते हैं भाई जो मरते वक्त सांसें टूट रही हैं, औलाद पास बैठी है और बच्चों को वारद नफरत का दर्स दे के जाता है। मर गया तो मेरे प्राणु मुंह न लाया जाए, चाचे नु तक्के दे के करो कर दिया जाए। क्या ये नफरतें लेके वो भी सांसें टूट रही हैं? आवाज दो भाई को बुला लाओ, ओ बुला लो, गलतियां हो जाती हैं, माफ कर दो, उससे माजरत कर लो। लेकिन हम तो नफरत का दर्स देते हैं। फूफी ने मुंह नहीं लाना, चाचे ने मुंह नहीं लाना, क्या गलत हो गया यार? कितना बड़ा जुर्म हो गया? दीवार पे झगड़ा हुआ, बच्चों में झगड़ा हुआ तो हमने 20-20 साल आपस में ताल्लुक ही तोड़ दिए। ऐसे लोगों को भी जानता हूं, ऐसे नालायक बेटों